Okay, so ladies and gentlemen, boys and girls, this is about the FRM program, Financial Risk Management. वो शाहरुख खान बोलता है ना, राहुल नाम तो सुना होगा. So FRM नाम तो सुना होगा. I'm sure you must have heard the name Financial Risk Management. It is the best short-term distance learning program in finance as of today. It's accepted everywhere in the finance industry, especially in the banking system, in the rating agencies network, in the insurance network, in the investment management firms network. छोटा सा प्रोग्राम है, 1 साल में कंप्लीट हो जाता है. इनफैक्ट टेक्निकली तो पीपल उसको 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, बट हम लोग SSCI कोई हालत में 6 मंथ एडवाइज नहीं करते. वी एडवाइज 1 year to 2 years. Yes, we are always the ones who believe that एक प्रोग्राम या डिग्री करके क्या होगा. आपके नाम के सामने संजय सराफ FRM लिखा रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिलीव मी, इन द लॉन्ग टर्म. क्या फ़र्क पड़ता है कि उसके अंदर जो क्वालिटी स्टफ़ है ना, विच इज़ नोवेयर एल्स, क्या वो स्टफ़ पे आपका मास्टरी पकड़ है कि नहीं है, क्या आपने उसको उतने बढ़िया से किया है. तो आई थिंक इट रिक्वायर्स 1 year to 2 year to complete FRM, स्पेशली फॉर द यंग किड्स हु आर एंटरिंग द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर. उनके लिए तो डेफिनेटली ये टाइम लगना ही है. नाउ संजय साहब क्यों FRM का अलग से अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि संजय सर माई सेल्फ इज़ गोइंग टू स्टार्ट टीचिंग FRM फेस टू फेस लाइव ऑनलाइन फ्रॉम जुलाई. येस, यू हर्ड इट राइट. मैं FRM पढ़ाना चालू करने वाला हूँ फेस टू फेस लाइव ऑनलाइन फ्रॉम जुलाई. तो FRM पार्ट 1 का बैच स्टार्ट होने वाला है. बट सर आप तो हमेशा से ही FRM पार्ट 1 पढ़ाते थे. ओके, राइट फ्रॉम द डेज वी नो यू. आपका तो नाम CFA FRM ही रखा गया है. ऑफ कोर्स, let me tell you that when it comes to CFA and FRM and you ask me, या those people who know me closely, they will tell you that संजय सराफ सर का FRM जो है ना, उस पर ज़्यादा उनका एक कलर्स आता है. क्यों? Because FRM is a program जिसमें we have derivatives, we have quantitative methods and we have a lot of modeling stuff. CFA थोड़ा softer stuff हो जाता है. कई बार उस पर भी discuss ESG, corporate governance and you know the type of respect I have for these topics. So FRM gets into my vein like anything. मेरे पूरे स्पाइनल कॉर्ड में छा जाते हैं. तो मैंने लास्ट FRM एक्टिवली 2017 में पढ़ाया था, और उसके बाद there was so much of CA classes and so much of CFA stuff and so much of my own investments going on that FRM had a back burner, okay, and I could not pay attention to FRM. But now I am starting FRM full-fledged live face-to-face from July onwards. सर अचानक से आपको ये FRM का फिर से होता है ना रीइंकारनेशन जोश क्यों आया? अरे व्हाट इज़ द रीज़न? बहुत सारे रीज़न्स है. एक तो नॉस्टैल्जिया, बहुत ज़ोर से याद आ रहा है FRM का, लग रहा है मिस कर रहे हैं. मैंने मन कर रहा है वो वैल्यू एट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ये सारे चीज़ के अंदर घुसने का. There are so many bankers and all that I keep on meeting as a part of our alumni initiative. Okay, I am recently going to US to meet my daughter, and over there I'm going to stay with Sumer Bajaj. He's the executive director, Morgan Stanley. And you know what? He did FRM with me 2008. So FRM 2008 में किया, went into the industry, did a CFA also. ठीक है, of course उसके पहले MS Finance किया हुआ है. But the point is that if you ask Sumer, he says that FRM is the one thing that actually made his career. So if you can reach to the level of executive director Morgan Stanley sitting in New York, what more? और तो उससे बातचीत होगी तो और बताऊंगा मैं in my next video. But yes, Sumer is one of the reasons. Second reason being that recently I met Mrityunjoy. Okay, he is Director Financial Services FICCI. FICCI में Director Financial Services, and he had so much to speak about FRM. He had studied with me, you know, way back in 2003-4, 2003-4. सर आप उस समय भी पढ़ाते थे क्या? अरे भाई हम तो 95-96 से पढ़ा रहे हैं. तो मृत्युंजय हैड स्टडीड एट दैट टाइम इन कैलकाटा, यू नो, फेस टू फेस, जहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं होती थी. एंड टुडे ही इज़ FICCI डायरेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज. ओके, एंड व्हेन आई टॉक टू हिम अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, आई फील एन स्पार्क कम्स टू हिज फेस. ओके, तो आई थिंक I am lacking that touch with FRM and I really want to get into it. I've started preparing for it, making study material. अभी क्या changes हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सारा का सारा incorporate करके, और अभी तो it's all AI. Okay, and I feel that FRM को एक अलग अवतार में ले जाएंगे, especially for the kids, you know.
जो लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं काश यार हमारा ग्रेजुएशन करते करते BBA BCom ये सब के साथ साथ या स्टैट्स ऑनर्स इको ऑनर्स ओके मैथ्स ऑनर्स के साथ साथ CFA FRM दोनों कंप्लीट कर लें, okay, so that we can rock the world, we can get some solid internship or job for 1 or 2 years at the best of investment management, risk management firms, investment banking firms, and uske baad we may go for an MBA, okay, a PGDBM, or we may just stick to the industry because the industry is so much offering us. Sir, FRM का जो classes चल रहा है अपने देश में और विश्व में, global में, what do you have to say about those classes? Believe me, the classes do serve the purpose. The classes which are going on, they do serve the purpose. What is the purpose? The purpose of passing. The purpose of passing the exam and having FRM by the side of your name. वो काम accomplish हो जाता है. There are so many students जो मेरे से CFA पढ़ के FRM स्क्वाइजर के बेसिस पे टान लेते हैं या वो यहाँ वहाँ से क्लास लेके टान लेते हैं. कोई इज्जत ही नहीं है FRM की तरफ. मतलब क्या हो रखा है अपने कंट्री में जो कि चेंज हो रहा है. CA, CFA, FRM. बंदा CA को तन मन धन सब लुटा देते हैं और CA उसको कुछ नहीं देते, ठीक है ना. उसके नीचे CFA, हाँ ठीक है CFA भी करना है, और उसके नीचे FRM तो क्या ऐसे ही. तो ऐसे ही तो क्या है ना कि सिंस आपका कैलिबर है, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दिया तो आप CA CFA के बेसिस पे FRM टान सकते हैं. बट बिलीव मी, वो वही वाला टानना हुआ जो एक कॉमा के फॉर्म में रह जाएगा और आप जाएंगे तो बोलेगा आपको FRM रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी नहीं आता है. ये हाल चल रहा है. लोग स्क्वाइजर को रट रट के FRM का एग्जाम दे रहे हैं सिंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हुए हैं. सो दे आर perhaps to some extent passing the exam with a 20-30% result. Believe me, it's pathetic. They don't know anything about credit risk, market risk, operational risk. सर FRM में मैंने सुना है एक्सेल वगैरह बहुत ज़्यादा है. यार है तो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में एक्सेल करके आना है. बट FRM इज ऑल अबाउट मॉडलिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट ओके द बेसिल नॉर्म्स, तो उसका पूरा क्रेडिट रिस्क का मॉडलिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक्स में इतने सारे इवेंट्स और प्रोसेसेस है जहाँ पे कितना कितना रिस्क इन्वॉल्व है, तो इन दैट केस वी टॉकिंग अबाउट ऑपरेशनल रिस्क. एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स है, दे आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड बॉन्ड्स एंड व्हाट नॉट. तो सारा का सारा मार्केट रिस्क उन सब का मॉडल करना पड़ता है. मॉडल मतलब भयंकर मॉडल. तो मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ FRM प्रोग्राम. बट इफ यू आस्क मी सर एक्सेल, क्या एक्सेल का निंजा होना बहुत जरूरी है, या इज FRM प्रोग्राम मेकिंग यू एन एक्सेल निंजा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. एकदम स्टुपिडिटी. इफ समबडी नोज स्लो एक्सेल कि भाई हम धीरे धीरे करते हैं, हम GPTs वगैरह को यूज करके करते हैं, हम दिमाग लगाते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे वो लगेगा. द फैक्ट दैट बैंक का अगर क्रेडिट रिस्क पोर्टफोलियो है तो उसको क्लासीफाई कैसे किए. ओके, क्या वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ओके, क्या वो सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में है, क्या क्रेडिट रेटिंग है उसका, इंटरनल रेटिंग यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेटिंग यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं. इट हैज़ टू बी गॉन इनटू. ओके, डेरिवेटिव्स जो है उसमें FRM में जिस तरह डेरिवेटिव्स है बाकी कोई प्रोग्राम में नहीं है भाई, CFA में भी नहीं है. दे जस्ट गो इनसाइड एक्सोटिक ऑप्शंस. CFA program doesn't teach exotic options at all. So if CFA people think that FRM में क्या एक्स्ट्रा है, CFA में जो जो कमी है FRM उसको पूरा करते हैं. फॉर मी, एक CA स्टूडेंट या CFA स्टूडेंट के लिए FRM इज लाइक एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी. यू प्लग FRM, एक साल में कंप्लीट हो जाता है, खर्चा भी टॉलरेबल है. एंड इफ यू डू इट नाइसली, अगेन इफ यू डू इट नाइसली, ओके, इन दैट केस इट कैन चेंज your life. It can work wonders for you. Whatever you wanted, it can happen as a result of FRM. And मेरा तो हैबिट है कि मैं कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ, एनालॉजिकली, इंट्यूटिवली. ठीक है, जो सोफिस्टिकेटेड एल्जेब्रिकल मैथ्स किया हुआ जो देख के लगेगा बाप रे बाप ये क्या है, दैट इज सो सिंपल एट द एंड ऑफ द डे. वो सिंप्लिसिटी कन्वर्ट करना इज व्हाट इज लैकिंग इन द ग्लोबल ट्रेनिंग इंडस्ट्री व्हेन इट कम्स टू FRM. Either some people will just do squeezer, some people will do Excel, but where is the midway? Why are you not teaching the concept involved? So I think I'm super excited to start FRM from July. Okay, of course it is FRM part 1. एक साथ मेरे टेबल में बहुत कुछ है, मैं दोनों पार्ट्स एक साथ स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ. FRM part 1 स्टार्ट होगा जुलाई से, मई एग्जाम के लिए, मई 27 के लिए. We'll complete the syllabus 2.5 months before the exam, and लास्ट के 2 months तो आपको पता ही है, रिविजन एंड मॉक्स एंड ऑल दैट होता रहता है. और हर चैप्टर के बाद मॉक्स होता है, हर क्लास का ऑडियो समरी होता है.
हर चैप्टर का मॉक टेस्ट होता है। तो मतलब हमारे यहाँ तो एकदम फिलॉसफी है ना, हर क्लास लेक्चर उसके अंदर क्वेश्चंस, उसका ऑडियो समरी, चैप्टर ख़त्म हुआ, चैप्टर का समरी, चैप्टर का मॉक्स, उसके बाद टॉपिक ख़त्म हुआ, टॉपिक का मॉक्स, उसके बाद पूरा सिलेबस ख़त्म हुआ, सिलेबस का मॉक्स, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन, रेगुलर जूम इंटरैक्टिव सेशन। कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ जो मिसिंग होता है हमारे क्लासेस में। बट यही प्रॉब्लम हो जाता है किसी किसी लोगों को, उनको लगता है बाप रे इतना कौन करेगा FRM के लिए। तो भाई अगर तुम FRM को रिस्पेक्ट देने तैयार नहीं हो तो मेरे पास तो मत आना। एनीबडी हु इज वांटिंग टू डू FRM एज अ साइड कोर्स कर लेते हैं यार, छोड़ना। संजय श्रावस्ता इज नॉट फॉर हिम, बिकॉज आई विल गिव हिम द रिस्पेक्ट लाइक कि FRM बस तुम ही तो हो और कोई नहीं है। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव इट दैट रिस्पेक्ट while teaching FRM, ensuring that FRM changes your life forever on the upside. Okay, do join FRM program and stay connected with us. This is risk management. क्या बोलते हैं उसको? FRM 2.0 बोलते हैं क्या आजकल? The Gen Z 2.0. Yeah, starting at SSCI. I'm starting at July. Thank you.